तो जब अल्लाह तबारक तआला ने इनकी माफी का ऐलान कर दिया, तो फिर अब कौन होते हैं जो उन मामलात को डिस्कस करके सहाबा पर एतराज करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान घटाने की कोशिश करते हैं, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान घटाते हैं, सैयदना उस्मान गनी की शान घटाते हैं, और ये चाहते हैं कि मौला अली की शान बढ़े। तो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप लोगों के झूठी बातों की जरूरत नहीं है कि आप झूठ बोलकर धोखा देकर लोगों को आप मौला अली की शान बढ़ाएं। मौला अली को अल्लाह तबारक तआला ने इतनी शान अता फरमा दी है कि अब उनको आपके झूठ की जरूरत नहीं है। मौला अली आपके झूठों के क्या कहते हैं हाजतमंद नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे, आप कौम को धोखा देंगे, आप बाकी सहाबा की गुस्ताखी करेंगे, फिर ही मौला अली की शान बढ़ेगी। मौला अली की शान बहुत बुलंद वाला है, लेकिन अपनी तरफ से मन गढ़ंत झूठी सही रवायात बयान करके सैयदना सिद्दीक अकबर की शान पर हमला न करो, फारूक आज़म की शान पर हमला न करो, उस्मान गनी की शान पर हमला न करो। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ عزیز دوستوں، مجھے کچھ ویڈیو پڑھنے کو ملی جس کے اندر روافض کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، ساتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا بھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، پھر اس کے بعد ان معاملات کو ڈسکس کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، ان کو اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو معاملہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ لیکن میں اس کے حوالہ سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے سیرہ کی کتابوں کی حوالہ پیش کروں گا کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے بخاری شریف سے حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ بخاری شریف سے حدیث پاک ہے کتاب المغازی کے اندر باب الاحد، ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر غالباً ہے 4043 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب احد کا واقعہ پیش آیا تو نبی علیہ السلام نے کچھ تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر کیا وہ ہم پر غالب آ جائیں یا ہم ان پر غالب آ جائیں، آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن جب صحابہ ان پر غالب آ گئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اب بھاگ رہے ہیں کافر، تو صحابہ ان کے پیچھے آئے، جن کا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، وہ پیچھے آ گئے، جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ اس وقت ایمان نہیں قبول کیا تھا، آپ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، آپ نے یہ کہا کہ کیا نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قابل آپ شہید ہو گئے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا کوئی جواب نہ دو۔ پھر کہا کہ کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر وہ قتل ہو گیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ پھر جب انہوں نے بات کی کیا خطاب کا بیٹا عمر قتل ہو گیا ہے؟ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، ہم تینوں ہی ٹھیک ہے، ہم تینوں ہی ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ بات کرنا، یہ بات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں کی، اور
हजरत उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया और साथ में ये कहा कि अबू बकर भी ठीक है और रसूलुल्लाह भी ठीक है। ये इस बात की वाक़ई दलील है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से भागे नहीं थे। अगर आप फरार हो गए तब भाग गए थे तो फिर हजरत अबू सुफियान को जवाब किसने दिया? तो हजरत उमर का जवाब देना ही इस बात पर दलील है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जगह पर मौजूद थे। लेकिन मैं आपके सामने शिया की किताबें पेश करता हूँ। पहली किताब है बिहारुल अनवार जिल्द 20 सफ़ा 136 है और यही बारह शरह नहजुल बलागा इब्ने हदीद की 15वीं जिल्द का सफ़ा नंबर 12 पर भी मौजूद है। वो इबारत क्या है? वो कानतुल इसाबतुल्लती तस्कुदु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबाता अशरा रजुलन कि जब ओहद के वक्त परेशानी बढ़ी तो नबी अलैहि सलाम के साथ 14 बंदे जो थे 14 मर्द साबित कदम रहे। राजुलन सबअतुन मिनल मुहाजिरीन व सबअतुन मिनल अंसार, उनमें 7 सहाबा मुहाजिरीन में से थे और 7 अंसार में से थे। तो अम्मल मुहाजिरून जो मुहाजिर सहाबा थे उनमें कौन है? तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहला नाम जो है वो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है और दूसरा नाम जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तीसरा नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का है। चौथा नाम हजरत साद बिन अबी वक़ास का है। पांचवा नाम हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह का है। सातवां नाम हजरत अबू बैदा बिन जर्राह का है और आठवां नाम अगर जो नाम आया है वो है हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सारे सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे और ये शिया कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है, बिहारुल अनवार के अंदर भी और शरह नहजुल बलागा इब्ने हदीद के अंदर भी ये बात मौजूद है। तो यहाँ पर जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम मौजूद है। फिर दूसरी इबारत ये तफसीर मजमुअल बयान शियों की है। इसकी दूसरी चीज के अंदर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 155 जो मैंने आपके सामने पढ़ी है उसी तफसीर के तहत उसी आयत की तफसीर में ये बात लिखी हुई है लम यबका मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहुद इल्ला सलासता अशरा रजुलन। पीछे जो थे वो 14 थे, आगे 13 का जिक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मैदान उहुद में 13 मर्द मौजूद थे। नफसन खमसतु मिनल मुहाजिरीन व थमानियतु मिनल अंसार, 5 सहाबा जो थे वो मुहाजिरीन में से थे और बाकी जो 8 बचते हैं वो है अंसार में से। तो फिर वो अम्मल मुहाजिरून जो मुहाजिर सहाबा थे उनमें कौन कौन थे? वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हजरत तलहा, फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और फिर हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पर भी शिया की 3 किताबों को मैंने आपके सामने हवाला जात पेश किए हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान उहुद से नहीं भागे और बुखारी शरीफ की बात आपके सामने पेश की है कि जिसपे ये मौजूद है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नहीं भागे। और जहां तक रही हजरत उस्मान की बात तो ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि एक शख्स हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास आया और आकर कहने लगा क्या आप जानते हैं कि हजरत उस्मान मैदान बद्र में मौजूद नहीं थे? हजरत अब्दुल्ला ने कहा हाँ जानता हूँ, नहीं थे। फिर कहा कि क्या आप जानते हैं कि हजरत अब्दुल्ला हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान खैबर में भी नहीं थे, जो थी सुलह हुदैबिया उसमें भी नहीं थे? तो आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, नहीं थे। फिर कहा कि क्या आप जानते हैं कि ये गज़वा उहद में भाग गए थे, साइड पे हो गए थे? तो आपने कहा हाँ मुझे पता है कि साइड पर हो गए थे। तो फिर कहा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपने ये जवाब दिया कि सुनो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बद्र के मैदान में नबी के कहने पर पीछे रुके और
सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी के कहने पर वो मक्के गए। और जहां तक रही बात है जंग ओहद की, तो उनकी माफी का ऐलान अल्लाह तबारक तआला ने कर दिया है। तो जब अल्लाह तबारक तआला ने इनकी माफी का ऐलान कर दिया, तो फिर अब कौन होते हैं जो उन मामलात को डिस्कस करके सहाबा पर एतराज करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान घटाने की कोशिश करते हैं, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान घटाते हैं, सैयदना उस्मान गनी की शान घटाते हैं, और ये चाहते हैं कि मौला अली की शान बढ़े। तो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप लोगों के झूठी बातें की जरूरत नहीं है कि आप झूठ बोलकर धोखा देकर लोगों को आप मौला अली की शान बढ़ाएं। मौला अली को अल्लाह तबारक तआला ने इतनी शान अता फरमा दी है कि अब उनको आपके झूठ की जरूरत है नहीं है। मौला अली आपके झूठों के क्या कहते हैं हाजतमंद नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे, आप कौम को धोखा देंगे, आप बाकी सहाबा की गुस्ताखी करेंगे, फिर ही मौला अली की शान बढ़ेगी। मौला अली की शान बहुत बुलंदो वाला है, लेकिन अपनी तरफ से मन गढ़ंत झूठी सही रवायात बयान करके सैयदना सिद्दीक अकबर की शान पर हमला न करो, फारूक आज़म की शान पर हमला न करो, उस्मान गनी की शान पर हमला न करो, वरना फिर वही बात जो मुनाकिब अली अबी तालिब मैंने आपके सामने पिछली क्लिप में हवाला पेश किया था। तो मौला अली फरमाते हैं जो इन तीनों को मुझसे कम करे और मुझे इनसे बढ़ाए वो है ही लानती। तो लानती वाला काम न करे, इंसानों वाला काम करे। मुसाहिरात सहाबा को और इन मामलात को डिस्कस करने की इजाजत नहीं है, लिहाजा आप ही इनसे डिस्कस करके इस्लाम के अंदर इंतजार न चलाएं, फितना ना फैलाएं। इस्लाम पहले ही बहुत ही मुश्किलों में गिरा हुआ है, आप मुझे काम ना करें। दुआ अल्लाह की बात करें और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।